So now I am starting with the examples. Example 5 is, let f of x is equal to mod x over x for all x except 0. That means x is approaching to 0, x is in the neighborhood of 0. We have to prove that limit x approaches to 0, f of x does not exist. So as I told you, जब भी हमारे पास does not exist का question आएगा, so we will tend to use Cauchy's criteria. Now Cauchy's criteria में क्या था? That means we will take two values of x in the neighborhood of 0. They have taken x1 and x2 in the neighborhood of 0, in the delta neighborhood of 0. Yes. So let us see, let epsilon greater than 0, however small, we choose epsilon. Epsilon is always positive and less than 1. Always. Epsilon always lies between 0 to 1. So let delta greater than 0 be a positive real number. Because x approaches to 0, so we will take x1 and x2 as two values in the delta neighborhood of 0. Now Cauchy's criteria में, now if I am able to prove that f of x1 minus f of x2 modulus is less than epsilon, then this limit will exist. So let us see, when I take f of x1 minus f of x2, this is f of x. So f of x1 क्या हो जाएगा? x1 mod over x1 minus x2 mod over x2. Now see here, when they have taken two values of x1 in the delta neighborhood of 0, this is 0 and this is the delta neighborhood. Now they have taken the two values, one in the left neighborhood and the other in the right neighborhood. So x1 is in the right neighborhood of 0, so that means x1 is positive, whereas x2 is in the left neighborhood of 0, so x2 is negative. So using this, x1 mod will be equal to x1 and x2 mod will be equal to minus x2. So now जब ये कैंसिल हुआ तो ये 1 बना, माइनस माइनस प्लस एंड ये भी कैंसिल होके 1 आ गया. सो आई एम गेटिंग आंसर 2. सो एप्सिलॉन वाज लेस देन 1. Yes, so that means this 2 is greater than epsilon. So f of x1 minus f of x2 is greater than epsilon. That means they do not lie in the epsilon neighborhood of each other when x1 and x2 were lying in the delta neighborhood of 0. So therefore, limit x approaches to 0, f of x does not exist. Clear? So very important example. So यहाँ पे x except 0 का मतलब यही है that x is approaching to 0. Next is, let f of x is 1 when x is a rational number and minus 1 if x is an irrational number. R is set of real numbers. अगर हम set of real numbers में से q set of rational numbers को subtract कर देंगे, so we are left with the set of irrational numbers. Prove using definition that limit x approaches to c, f of x does not exist. So does not exist show करना है तो again we will be using Cauchy's criteria. So now in this case x is approaching to c. So that means we will take two values of x in the delta neighborhood of c. So they have done, let epsilon greater than 0 however small, we choose epsilon lying between 0 to 1. Let delta greater than 0, then we have taken x1 and x2 as two values in the delta neighborhood of c. Now you know that एक किसी भी रियल नंबर के नेबरहुड में कुछ रैशनल नंबर्स होते हैं और कुछ इरैशनल नंबर्स होते हैं. There lies infinitely many rational and irrational numbers between a very small interval. So ये delta neighborhood में भी there will be infinitely many rational and irrational numbers. तो हमने ये जो x1 और x2 c के delta neighborhood में से choose किया है. So we are choosing them such that I am saying that x1 is a rational number and x2 is an irrational number. Yes. So अब हमें जो f of x की values दी हुई थी वो split करके दी थी. यही वाली value थी that f of x is 1 if x is rational and minus 1 if x is irrational. So that is why जब हम f of x1 minus f of x2 करेंगे तो क्योंकि x1 rational है तो f of x1 will be equal to 1 minus but x2 is irrational, so f of x2 will be minus 1.
So answer I am getting 2, which is again greater than epsilon. So hence f of x1 minus f of x2 is greater than epsilon when x1 and x2 lies in the delta neighborhood of C. So therefore limit does not exist. Okay. So next ये कुछ remarks दिए इन्होंने, आप पढ़ सकते हो इनको. They are saying, ये अभी हमने ये प्रूव किया है, लिमिट x approaches to c f of x does not exist. So similarly इन्होंने एक और फंक्शन g of x डिफाइन कर दिया इससे ऑपोजिट, दैट रैशनल पे इसकी वैल्यू -1 है और इरेशनल पे 1 है. सो इसको भी आप सेम मेथड से प्रूव कर सकते हो दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट. सो दे आर सेइंग दैट लिमिट्स, दीज लिमिट्स डू नॉट एग्जिस्ट. बट अगर मैं इन दोनों फंक्शंस को ऐड कर दूँ, f प्लस जी करूँ, तो f प्लस जी करने से क्या होगा, जब x रैशनल है तो 1 - 1 0 और इरेशनल है तो -1 + 1 0. सो f प्लस जी इज़ कमिंग टू बी 0 फॉर ऑल x एंड क्लियरली यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी. आप इसको प्रूव भी करके दिखा सकते हो. सिमिलरली अगर मैं इनका प्रोडक्ट ले लूँ तो f इंटू जी विल बी -1, हेयर ऑल्सो -1 फॉर ऑल x. So again this limit is existing. So you have to remember this result, that if f of x and g of x may not, sorry, that limit x approaches to c, f of x and g of x may not exist separately, but their sum exists as well as their product also exists. Next, this is also an important result. If limit x approaches to c, f of x is equal to L, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो मॉड f of x की लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी एंड विल बी इक्वल टू मॉड L. बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. So limit x approaches to c, f of x is equal to L. So by definition, for given epsilon greater than 0, we can find a positive real number delta such that f of x minus L modulus is less than epsilon for 0 less than x minus c less than delta. Now मुझे प्रूव ये करना है. So mod f of x minus L का mod जब मैं लूँगी, दिस इज़ लेस देन इक्वल टू f of x माइनस L का mod, ये हमारे पास रिजल्ट होता है. मॉड ऑफ मॉड a माइनस मॉड b इज़ लेस देन इक्वल टू a माइनस b का mod. सो अब क्योंकि ये लेस देन एप्सिलॉन है तो इसका मतलब ये भी लेस देन एप्सिलॉन हो गया. सो देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू c mod f of x इज इक्वल टू mod L. सो इफ limit of a function exists, limit of its mod also exists and is equal to mod of the limit. But converse is not true. Now here you can see, अगर मैं यही वाला एग्जांपल लूँ, इसमें लिमिट क्लियरली एग्जिस्ट नहीं कर रही है, बट अगर मैं इसका मॉड ले लूँ, सो दे हैव शोन दैट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू. सो ये फंक्शन लिया, अगर मैं इसका मॉड लूँगी तो 1 आ जाएगा फॉर ऑल x and clearly it exists. So limit x approaches to c mod f of x exists at all c, but limit x approaches to c f of x does not exist. So if limit exists, limit of its mod will also exist, but if limit of the mod exists, so converse may not be true. May be true, may not be true, but is not always true. So next example is, sixth example is very important. Again we have to prove that limit x approaches to a 1 over x minus a does not exist. So whenever does not exist comes, that means we have to use Cauchy's criteria. Now this question you have to be very careful. See, अभी तक आप क्या करते आए हो? According to Cauchy criteria, we should take two values of x in the delta neighborhood of a. So x1 and x2 are two values in the delta neighborhood of a. Yes. उसके बाद आप क्या करते हो, f of x1 माइनस f of x2. नाउ हेयर अगर मैं यूजुअल मेथड से चलती हूँ तो देखो f of x1 क्या बन जाएगा, 1 over x1 माइनस ए, एंड f of x2 क्या बन जाएगा, 1 over x2 माइनस ए. सो इसका जब मैं एलसीएम ले रही हूँ तो ये मॉड आ रहा है विच आई एम नॉट एबल टू सॉल्व. ये सॉल्व नहीं हो पाएगा. ठीक है. और मुझे प्रूव करना है कि ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, तो ये कुछ तो आना चाहिए कि ग्रेटर देन एप्सिलॉन है या लेस देन एप्सिलॉन है. सो आई एम नॉट एबल टू डिराइव एनीथिंग फ्रॉम दिस. सो दैट इज़ वाई इन दिस केस सी व्हाट दे हैव डन. वी हैव टू टेक x1 इन द डेल्टा नेबरहुड ऑफ a. यस. तो ये a है और ये इसका डेल्टा नेबरहुड है. अब इसके डेल्टा नेबरहुड में जब मैंने कोई वैल्यू लेनी है, सो मैं a
प्लस छोटी सी कुछ ऐड कर सकते हो इसमें से. सो व्हाट दे हैव डन, दे हैव टेकन a प्लस 1/n. सो x1 की जो वैल्यू ली वो क्या ली, a प्लस 1/n. सो n क्या है, c. चूज अ पॉजिटिव इंटीजर n. अब n अगर पॉजिटिव इंटीजर है इसका मतलब n की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, जितनी मर्जी बड़ी हो सकती है. इट कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 1 to infinity. सो n की जो भी वैल्यू होगी 1/n उतना ही स्मॉल हो जाएगा. So 1 over n we have taken a positive integer n such that 1/n is less than delta. So delta भी हमें पता है क्योंकि एप्सिलॉन 0 to 1 के बीच में लाई करता है, तो डेल्टा भी हमारा जनरली जो है वो 0 to 1 के बीच में ही लाई करता है. सो अगर n की वैल्यू में 1 को छोड़ के 2 से लेके इन्फिनिटी तक आप अगर n की कोई भी वैल्यू लोगे तो 1/n विल लाई बिटवीन 0 to 1. यस, देखो अगर मैंने n को 2 ले लिया सो 1/n विल बी 1/2. अगर n को 3 ले लिया तो 1/n विल बी 1/3. सो वैल्यूज विल बी लाइंग between 0 to 1. So clearly 1/n is greater than, sorry, 1/n is less than delta. ठीक है. So 1/n is अगर less than delta है so 1/2n भी less than delta होगा. So अब इन्होंने देखो x1 क्या ले लिया, a प्लस 1/n एंड x2 क्या ले लिया, a प्लस 1/2n. ठीक है. So choose a positive integer n such that 1/n is less than delta. 1/2n is less than 1/n is less than delta. Let x1 is equal to a plus 1/n, x2 is equal to a plus 1/2n. Be two real numbers satisfying 0 less than x minus a modulus is less than delta. Then f of x1 is n. देखो ये ठीक है ना, x1 और x2 इन्होंने दो नंबर्स ऐसे लिए हैं कि ये दोनों नंबर्स जो हैं a के डेल्टा नेबरहुड में ही लाई कर रहे हैं. नाउ अगर x1 की ये वैल्यू है तो f of x1 क्या हो जाएगा, जब आप 1 over x1 यहाँ पे पुट करोगे तो a माइनस a प्लस 1/n माइनस a करेंगे, a से a कैंसिल, 1/n का रेसिप्रोकल, सो यहाँ पे n बचेगा. सिमिलरली जब आप यहाँ x2 की वैल्यू a प्लस 1/2n करोगे तो यहाँ 2n बचेगा. सो फाइनली दे आर गेटिंग माइनस n का मॉड विच इज़ इक्वल टू n एंड विच इज़ क्लियरली ग्रेटर देन एप्सिलॉन. चूज़ अ पॉजिटिव, बेशक यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये जो n है चूज़ अ पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन 1 लिख सकते हो आप, क्योंकि आप देख रहे हो अगर ये n की वैल्यू 1 है तो ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा. फिर क्लियर है आई गेस. ये डेल्टा जो है 0 to 1 के बीच में लाई करता है, तो अगर n की वैल्यू 1 होगी तो 1/n भी 1 होगा. सो 1 is less than delta is not true because delta is always less than 1. So यहाँ पे choose a positive integer n, तो आप लिख सकते हो यहीं पे that n should be greater than 1 such that 1/n is less than delta. और 1/n less than delta का मतलब यही है कि n की वैल्यू जो है वो greater than 1 होनी चाहिए. Now since this n is greater than 1 so clearly it is greater than epsilon. So hence limit does not exist. सो यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे इन्होंने x1 को a प्लस 1/n लिया है, आप x2 को a माइनस 1/n भी ले सकते थे. आप लेके देखना तब भी आपका आंसर जो है वो ऐसे ही आएगा. ठीक है. देखो इन्होंने क्या किया, एक बार प्लस 1/n किया, एक बार प्लस 1/2n किया, तो जो x1 x2 है दोनों a के राइट नेबरहुड से ले लिए. अगर मैं a प्लस 1/n करती हूँ और माइनस 1/n करती हूँ तो इसका मतलब मैंने x2 एक लेफ़्ट नेबरहुड से लिया, एक राइट नेबरहुड से लिया. तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो. आप a प्लस 1/2n एंड a माइनस 1/2n भी ले सकते हो. आप a प्लस 1/n एंड a माइनस 1/2n भी ले सकते हो. सो ध्यान क्या रखना है कि x1 और x2 जो हैं वो a के डेल्टा नेबरहुड में लाई करने चाहिए. सो टेकिंग a इज़ इक्वल टू 1, सो सिमिलरली ये क्वेश्चन हो जाएगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा, इनफैक्ट 7th एग्जाम्पल भी हो जाएगा आपका. ओके, 7th एग्जाम्पल में नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट.
लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव, सो एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, दैट वी हैव टू टॉक ओनली अबाउट द लेफ्ट नेबरहुड, लेफ्ट डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी. सो क्वेश्चन सारा सेम है. Let epsilon greater than 0 however small, we choose epsilon between 0 to 1. Let delta greater than 0 positive real number. We have to choose a positive integer n such that 1 by n is less than delta. If 1 by n is less than delta, then 1 by 2n तो और भी छोटा हो जाएगा. So अब जो x1 और x2 हैं वो दोनों लेफ्ट नेबरहुड में लाई करने चाहिए. सो दे हैव टेकन c माइनस वन बाई एन एंड c माइनस वन बाई टू एन. सो यहाँ पे अब आप प्लस वाली वैल्यूज़ नहीं ले सकते. अगर आप c प्लस वन बाई एन ले लोगे तो वो c के राइट नेबरहुड में लाई करेगा. So x1 and x2 we have taken such that both the numbers lies between the left in the delta left neighborhood of c. So now f of x1 is n and f of x2 is 2n. यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके देख लेना आप. So that f of x1 minus f of x2 mod is equal to n, which is clearly greater than epsilon, hence limit does not exist. So next 8th question, इसमें भी आपको x1 और x2 ऐसे चूज करने हैं अपने आप. Now show that limit x approaches to 0 sin 1 by x does not exist. So let f of x is equal to sin 1 by x. Let epsilon lies between 0 to 1 and delta be a positive real number. अब देखो आपको x1 x2 x के 0 के डेल्टा नेबरहुड में लाई करने हैं. तो देखो इन्होंने कैसे चूज़ किया. x1 को इन्होंने चूज़ कर लिया है 1/2n पाई. सी अगर मैं x1 को पहले की तरह 1/n पुट करती तो यहाँ पे अगर मैं x1 को 1/n लेती तो ये बन जाता साइन n. अब साइन n की वैल्यू तो निकालना मुश्किल है, पाई चाहिए साथ में. सो इसलिए मुझे साइन फिर n पाई लेना है अब. ठीक है. नाउ अगर मैं n पाई लूँगी अगर तो देखो क्या होगा, तो साइन n पाई आ जाएगा यहाँ पे. तो साइन n पाई जो होता है वो हमेशा 0 होता है. साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब 0 होते हैं. सो फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या लूँगी, x2. अब x2 लेने के लिए इसी के पास में एक और पॉइंट तो मैंने इसमें प्लस पाई/2 कर दिया. अब जब आप ऐसे लिखोगे तो साइन ऑफ n पाई प्लस पाई/2 की वैल्यू निकालने में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि n इवन और ऑड के लिए साइन की वैल्यूज़ अलग अलग आएंगी. देखो अगर n 1 है तो साइन पाई प्लस पाई/2 इज़ थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव. अगर n 2 है तो 2 पाई प्लस पाई/2 इज़ सेकेंड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन विल बी पॉजिटिव. तो वो प्रॉब्लम आएगी. सो इसीलिए इन्होंने x1 को 1/2n पाई ले लिया हमेशा. सो अब n इवन हो या ऑड हो कुछ भी हो 2n तो हमेशा ही इवन होगा. सो साइन 2n पाई इज़ ऑलवेज 0 एंड 2n पाई प्लस पाई/2 कर दिया. सो अब ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जिसकी वजह से ये हमेशा पॉजिटिव होगा. सो एफ ऑफ x2 इज इक्वल टू साइन ऑफ 2n पाई प्लस पाई/2 इज इक्वल टू साइन पाई/2 इज इक्वल टू 1. So that f of x1 minus f of x2 is 0 minus 1, which is equal to 1, which is greater than epsilon. So when we have taken x1 and x2 as two real numbers lying in the delta neighborhood of 0, we are getting this as greater than epsilon. Therefore, limit does not exist. The next example है limit x approaches to -5/2. सो -5/2 में क्या होगा, ये सेम है बिल्कुल. देखो -5/2 के नेबरहुड में जो हमने दो पॉइंट्स लिए हैं, तो एक बार -5/2 प्लस 1/n ले लिया इसने, एक बार -5/2 प्लस 1/2n ले लिया. आप -5/2 प्लस n एंड -5/2 माइनस 1/n ये भी ले सकते हो. सो कुछ दोनों में से कुछ भी लेके जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ जाएगा. एक मिनट, लेट अस सी क्या किया इन्होंने. दे आर सेइंग इफ पॉसिबल सपोज दैट दिस लिमिट इज इक्वल टू l. ओके, दे हैव यूज्ड द डेफिनेशन. सो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है. आपने जैसे ये वाला एग्जांपल किया है ना हमने, ये वाला,
सो ए की जगह यहाँ पे -5/2 है। बाकी आप सारा डिटो ऐसे ही कर सकते हो, आप खुद ट्राई करके देखना है इसको उसी मेथड से, तो ये हो जाएगा। सो इन्होंने लिमिट वाली डेफिनेशन यूज़ की है, तो वो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम लिमिट वाली डेफिनेशन ही यूज़ करें। पढ़ लेना यहाँ से, ये भी मेथड ठीक है, समझ आ जाता है, वेल एंड गुड। अदरवाइज़ आप उस मेथड से दोबारा ट्राई करना है इसको, क्वेश्चन को। नेक्स्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेज यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लिमिट शो दैट लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी एक्स माइनस सी साइन ऑफ एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम डेफिनेशन ऑफ लिमिट यूज़ करते हैं। सो वी विल यूज़ एफ एक्स माइनस एल मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर एक्स माइनस सी मॉडुलस इज लेस देन डेल्टा। सो ये एफ ऑफ एक्स है। सो ये देखो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, ये लेके चल रहे हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एल, एल 0 है, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की। सो ये आ गया। क्या करना होता था डेफिनेशन ऑफ लिमिट में, हमें डेल्टा की वैल्यू चूज़ करनी होती थी इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन। सो जब इसको करेंगे एक्स माइनस सी साइन ऑफ 1 over एक्स माइनस सी, we know that sin theta is always less than equal to 1. So because this mod is less than equal to 1, so this is less than equal to x minus c, and this is less than epsilon whenever mod x minus c is less than epsilon. So I am getting fx minus 0 modulus is less than epsilon whenever x minus c modulus is less than delta. So delta की वैल्यू हमें in terms of epsilon मिल गई है, therefore limit is equal to 0. सेम इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वहाँ पे साइन की जगह कॉस है। सो बाकी एग्जाम्पल का सॉल्यूशन बिल्कुल सेम है, आप ट्राई करो अपने आप। सो नेक्स्ट दिस इज योर एक्सरसाइज 2A। सो दीज क्वेश्चंस यू हैव टू ट्राई, जो नहीं होंगे वो फिर हम डिस्कस करेंगे, एंड जो सबसे पहले एक्सरसाइज सॉल्व करेगा वो ग्रुप में पोस्ट कर देंगे।